रियांश इधर से write down ordered pair or ordered pair. Ordered pair. An ordered pair. An ordered pair. An ordered pair is a pair of objects. An ordered pair is a pair of objects taken in a specific order. Taken in a specific order. Okay, an ordered pair is written by listing its two members. हालांकि इसका कोई यूज डेफिनेशंस का नहीं, डायरेक्ट एप्लीकेशंस है, पर आप लिख रहे हो तो नोट्स चाहिए. लिस्टिंग इट्स टू मेंबर्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. Separated them by a comma. Separated by a comma and enclosing the pair in a bracket. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ए बी, ऐसे ए बी, एग्जाम्पल ए बी इज अ ऑर्डर्ड पेयर. ए बी इज अ ऑर्डर्ड पेयर where A is called the first element, where A is called the first element and B is called second element. B is called second element. ठीक है. सेकंड लिखो. इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. अब समझ लो पहले, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग है ऑर्डर्ड पेयर का. ऑर्डर्ड पेयर starting at whenever you are taking any two elements separated by comma in a bracket, small bracket, then that is known as ordered. ठीक है. जैसे देखो 2 and 3, this is also an ordered pair, or 2 3 where 2 is the first element and 3 is the second element. ठीक है. Any two element if you are taking in a bracket separated by comma, that will be an ordered pair. Clear है. ऑर्डर्ड इसलिए कि ऑर्डर इज नेसेसरी. 2 3 को
3 2 आप नहीं लिख सकते क्योंकि चेंज हो गया, ठीक है। इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इट इज रिटन, तो दिस वन इज अ ऑर्डर पेयर, 2 3 is an order pair, 3 2 is another order pair, not the same. Clear है? Here the next one is what is equality of order pairs. So suppose that let A and B, AB and CD are two ordered pairs, two ordered pairs, ठीक है। देखो सपोज दैट ये आपके पास दो ऑर्डर पेयर ए बी एंड सी डी, इन विच केस दे विल बी इक्वल, इन विच केस these two order pair will be equal. So यहाँ पे लिखोगे if and only if A B equal C D, समझ में देखो A B equal C D, कंडीशन यहाँ लगाते हैं if and only if A equal C, B equal, ये कंडीशन AB and CD are two order pairs and they are equal if and only if A equal C, B equal D। मतलब देखो फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट। If this condition satisfied, then you will say that these two order pairs are equal. You have written that there are two order pairs A and B and C D. देखो are equal, are said to be equal if and only if A equal C and B equal D. ठीक है, if and only A equal C, B equal D। यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई कोई भी दो एलिमेंट ले लें एंड ऑर्डर पेयर में, और अगर उनको इक्वल निकाले तो फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आपके एग्जाम में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? आपसे कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, मतलब कोई भी एक अननोन देगा वेयर दीज टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। क्लियर है? तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी where A3 equal to B, A3 equal to B, ठीक है। What you have seen कि already given कि these two are equal, ठीक है। And if these two are equal, then you will say if first element is equal to first element and second element is equal to second element, then what is value of A? बोलो, A equal to and B equal, this is your answer। और यहाँ से तुम्हें जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अ नॉन वेरिएबल, आपको इक्वल ऑर्डर पेयर दिया रहेगा, आपको जस्ट इक्वेट कर देना, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। अगला एग्जांपल लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई
Example second. Find the value of x and y where x plus y comma 7 equal 3 2x minus y. Clear? अब what is given here? Here it is given that these two ordered pairs are equal. Clear है? Then what will you see? If first element is equal to first element and second element is equal to second element. Clear? So just solve these two by equating x plus y equal 3 and 2x minus y equal 7. ठीक है? You will get here from these two equations. Just add them. If you are adding first and second, y will eliminate क्योंकि plus y minus y cancel out. 2x and x is equal to 3x. 3x equal 10, then x equal 10 by 3. This is the value of x. Now put the value of x in 1. From 1, x plus y equal 3, then 10 by 3 plus y equal 3, y equal 3 minus 10 by 3. ठीक है? 3 3 जा 9 minus 1 by 3. The value of y is 3 minus 1 by 3. Then what is your answer? The answer is x equal 10 by 3 and y equal minus 1 by 3. ठीक है? ऑर्डर पेयर में अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं भाई. कोई भी ऑर्डर्ड पेयर होगा अगर इक्वल होगा उसका फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकेंड एलिमेंट साइन किया और अभी सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल है. ठीक है? x equal 10 by 3 and y equal minus 1 by 3. ऑर्डर पेयर में नहीं, अभी तो ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रहा है ना, इतना ही कैसे. अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. Cartesian product of two sets. ठीक है? इसमें लिखो let A and B, capital A and capital B, let A and B are two non-empty sets
then the set of all ordered pairs, then the set of all ordered pairs AB, for every A belongs to A, B belongs to B. Then the set of all ordered pairs, for every A belongs to A and B belongs to B, is called the Cartesian product. Is called the Cartesian product of A and B and is written as A cross B. A cross B, it is read as A cross B. A क्रॉस मतलब लिखते हैं और पढ़ते क्या है, A क्रॉस B, and is given by A cross B equal AB, for every A belongs to A and B belongs to D. ठीक है, A cross B equal AB, for every A belongs to A, B belongs to B. ठीक है भाई, देखो एग्जाम्पल, पहले बात इतना समझ लो फिर कार्टेशियन एग्जाम्पल देखते हैं। देखो आपसे बोला है कि ए बी इज एन ऑर्डर पेयर, बट हियर व्हाट आई हैव टेकन कि देयर आर टू नॉन एम्प्टी सेट की बात किया है, नॉन एम्प्टी सेट की बात किया है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब मिनिमम द सेट विल हैव वन एलिमेंट, कम से कम कोई ऐसा सेट नहीं होना चाहिए जिसमें कि एलिमेंट ना हो। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब यही होता है कि वो पाई से नल सेट ना हो। ठीक है, if there are two non-empty set A and B, तो A का जो फर्स्ट एलिमेंट A स्मॉल A जो एलिमेंट है वो पहले सेट का होगा और जो दूसरा एलिमेंट B है वो दूसरे सेट का होगा। उन दोनों का अगर ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बनाए तो दैट इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। एंड हाउ विल यू डिफाइन दिस वन? A cross B equal AB such that A belongs to A, B belongs to B। क्या फॉर एवरी A belongs to A, B belongs to A। लिखने का तरीका अगर सच दैट लगाओगे आप यहाँ डबल डॉट डॉट लगाते, ठीक है, सच दैट फॉर एवरी A belongs to A, B belongs to B। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे आप देखेंगे, तो लिखो फाइंड A क्रॉस B, फाइंड A क्रॉस B find example 1, find A cross B where A equal 1 2 3, B equal 4 5। पांडे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा है? आप बोलो सर, कार्टेशियन क्या होता है? अच्छा, वैसे कार्टेशियन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन इन टू डायमेंशन प्लेन इन एक्स एंड वाई, दैट इज नोन एज कार्टेशियन। तो 2 3 जो है वो 2 एक्स कोऑर्डिनेटेड और 3 जो है
वाई कोऑर्डिनेट है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट प्लेन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, प्लेन मतलब प्लेन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम एक्स वाई वहाँ कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर 2 3 3 4 5 6 अगर ऑर्डर पेयर में लिखा है, इसका मतलब श्योर है तो 2 डायमेंशनल प्लेन में डिफाइंड है। 2 डायमेंशनल प्लेन में एक्स वाई होते हैं और एक्स वाई को कार्टेशियन प्लेन होते हैं, उसमें चाहे प्रोडक्ट करो, चाहे सब्ट्रैक्शन करो, चाहे एडिशन करो, चाहे क्लियर है भाई? आप कोई पॉइंट जैसे मान लो पॉइंट 2 3 है तो लोकेट करते थे ना, एक्स वाई प्लेन बनाते थे, 2 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 3 बनाते थे, उसको लोकेट करते थे और आप कहते थे दी जाता कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है? तो वहीं से वर्ड निकल के आया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर? तो A क्रॉस B वेयर A इक्वल 1 2 3 एंड B इक्वल 4 5। अब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे। A क्रॉस B का मतलब हो गया, देखो पहले इस एलिमेंट को लेंगे फर्स्ट को और इसके एक एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाते चलेंगे। कैसे? देखो फर्स्ट 1 4, देखो 1 4, फिर दूसरा क्या बनेगा 1 5। अब इसके दोनों एलिमेंट्स होंगे, अब फिर इसका सेकेंड एलिमेंट लेंगे 2 4 2 5 और इसके बाद 3 4 और 3 5। These are the Cartesian products of A cross। क्लियर? मल्टीप्लाई क्लियर है? क्लियर है ना? भाई देखो इसके जितने भी एलिमेंट होंगे दूसरे वाले के हर एक एलिमेंट से अलग अलग मल्टीप्लाई करते जाना। मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ लिखना मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, यहाँ कॉमा से ऑर्डर पेयर में सेपरेट करते जाना। 1 4 1 5 फिर 2 4 2 5 3 4 3 5। ओके, नोट डाउन। रिमार्क लिखो, रिमार्क लिखो, रिमार्क रिमार्क A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ठीक है, पहला कंडीशन A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ठीक है, सेकेंड देखो A क्रॉस B इक्वल 5, A क्रॉस B इक्वल 5 when 1 or both। ठीक है, एम्प्टी सेट आपको पहले ही बोल दिया है ना, नॉन एम्प्टी सेट्स। तो अगर कोई भी एक एलिमेंट एक सेट अगर नल सेट हो गया तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं आना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पाई का एलिमेंट पाई बनी, वो भी नल सेट। क्लियर? एंड वाई कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ नल सेट, क्योंकि देखो जितने आपने ऑर्डर पेयर लिया है उन सब का यहाँ पे कलेक्शन है। ब्रैकेट देख रहे हो, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज है। इसका मतलब ये जितने ऑर्डर पेयर का हमने कलेक्शन किया है तो A क्रॉस B भी एक सेट है, A क्रॉस B भी एक सेट है जिसमें ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है। ठीक है, अब अगर A या B कोई भी एक नल सेट होता तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई एलिमेंट नहीं आता, तो दैट विल बी A क्रॉस B विल बी आल्सो अ नल सेट। इतना याद, ठीक है? और अगर
थर्ड कंडीशन a is not equal to 5 मतलब a नल सेट नहीं है, b भी नल सेट नहीं है, ठीक है। देन a क्रॉस b इज नॉट अ नल सेट, ठीक है। अगर नहीं है तो दोनों नॉन एम्प्टी होंगे, तो दोनों अगर नॉन एम्प्टी होंगे तो डेफिनेटली 5 नहीं आएगा, कुछ एलिमेंट आएंगे जैसे आपके सामने है, दोनों नॉन एम्प्टी है, ये कंडीशन है। इसी का फोर्थ लिख लो, A क्रॉस B is infinite if A और B A and B और B if one or both, ऐसे both infinite, ठीक है भाई। हम कह रहे हैं कि अगर a क्रॉस b मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक में इनफाइनाइट एलिमेंट है, जाहिर सी बात है इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, जो मल्टीप्लाई जो थोड़ा बहुत से एलिमेंट आपको दिखेंगे, बाकी आप इनफाइनाइट तक दिखाओगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट भी मिलेगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज थे। और देखो यहाँ पे a क्रॉस b क्रॉस a इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर इसी को b क्रॉस a फाइंड कर रहे हैं, b क्रॉस a फाइंड करोगे, ये ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे, देखो 4 1 4 2 4 3, ठीक है, 4 1 4 2 और 4 3। इसके बाद 5 के साथ 5 1 5 1 5 2 and 5 3। Now you can see here कि the ordered pairs are different, ठीक है। So these are the a cross b is not equal to b cross a, और ये तो कंफर्म है, ये चीज कंफर्म है ना, इसमें कोई दिक्कत भाई। अगर इनफाइनाइट दोनों कोई भी एक फाई अगर किसी में एलिमेंट ही लिए तो मल्टीप्लाई क्या करोगे, तो नहीं मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए फाई आ जाएगी। और अगर दोनों नॉन एम्प्टी है तो आपके सामने एग्जांपल है, कुछ एलिमेंट मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, फाइनाइट ही मिलेंगे। पर अगर एक भी इनफाइनाइट हो गया या दोनों इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट ही कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्लियर है। एक भी अगर होगा तब भी इनफाइनाइट होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कैसे कि से ट्रू और फॉल्स, या ऑप्शन में दे देगा, ये आपका ऑप्शन है ना कि a क्रॉस b इज इनफाइनाइट एंड a इज इनफाइनाइट, तो उसमें ऑप्शन देगा ट्रू और फॉल्स, तो आप क्या दोगे, ट्रू कर दोगे, क्योंकि अगर एक भी इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट, क्लियर। अब देखो कार्टेशियन, फिर लाइन चेंज कर रहे हैं, लेट a b c, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, नहीं लाइन चेंज करके लिखना, लेट कैपिटल, क्योंकि आपके सिलेबस में देखा है ना 3 और 3 का भी है, 2 का तो आपने देख लिया, 3 का भी है। लेट कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C आर 3 नॉन एम्प्टी सेट्स, लेट कैपिटल A कैपिटल B एंड कैपिटल C आर 3 नॉन एम्प्टी सेट्स, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C are 3 non-empty sets, then A cross B
क्रॉस सी इक्वल ए बी सी और एवरी A belongs to A, B belongs to B, C belongs to, ठीक है, मतलब एक एक एलिमेंट एक एक सेट का होगा। देखो अगला पॉइंट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, देखो नंबर n a क्रॉस b इक्वल टू n a इंटू n b। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है तो आसान चीज है, आपको दिख भी रहा है कि कोई मल्टीप्लाई नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ एक कंसेप्ट चल रहा है। अब तक कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब देखो आपको अगला पॉइंट दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें सपोज दैट यू आर डूइंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B, then how many elements you will get here। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल A इक्वल 1 2, B इक्वल 3 4। ठीक है, अब बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जिसको आप कार्डिनल नंबर बोलते हो, हाउ मेनी आर 2। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बोलो कितना आ जाएंगे 2 इंटू ऐसे आएंगे ना, एन ए इंटू एन बी मीन्स 2 इंटू 2 इक्वल 4। आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनेगा उसमें दो सेट दे देंगे ए और बी, कुछ एलिमेंट देंगे और आपसे बोलेगा कि एन ए क्रॉस बी इक्वल हाउ मच। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन लेना, काउंट कर लेना, उनके मल्टीप्लाई कर देना, उतने एलिमेंट्स निकल के आते हैं। ठीक है, अब इनका पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करके देखते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल देखो 1 3 1 4 1 3 1 4 और फिर 2 के साथ 2 3 एंड 2 4। देखो ये इतने एलिमेंट्स आ गए। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, अब इसमें जो एलिमेंट काउंट करोगे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में आपको क्या बताया गया, एलिमेंट्स आर रिटन इन अ कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा ईच एलिमेंट। यहाँ पे हर एक एलिमेंट ये है जो कॉमा से सेपरेटेड है, दूसरा एलिमेंट ये है जो कॉमा से सेपरेटेड है, तीसरा ये है, चौथा ये। तो देयर आर 4 एलिमेंट्स। ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स सेपरेटेड है, देन दिस इज 4। अब आप देख सकते हो कि 4 यहाँ पे भी आ गया और 4 यहाँ भी हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज 4। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, देखते हैं बताते हो आप कैसे। लिखो E इक्वल ए बी सी। ये भी क्वेश्चन आप अच्छा है, एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी का पॉपुलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई बोर्ड का पॉपुलर क्वेश्चन है ये। E इक्वल ए बी सी, Q इक्वल डी, Q इक्वल डी। ठीक है, फाइंड P क्रॉस Q। आपसे बोल रहा है फाइंड P क्रॉस Q
and Q cross P are these two Cartesian products equal? Are these two Cartesian products equal? This is your question. Very simple question है, but ये CBSE के बोर्ड में हर बार मतलब रिपीट करता है बोर्ड में क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A and B of P and Q and then see either elements are equal. जल्दी करो। हो गया? अब एक भी किसी से मतलब अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं हो पा रहा है तो अभी लेना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही है। क्वेश्चन भी इंटरेस्ट है, द एंड की तरफ भी बढ़ना है और बहुत कुछ है। आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन करोगे तो आपको मिलेगा भी। जैसे P क्रॉस Q, if you are finding then बोलो A D B D C D, ठीक है। दिस इज द P क्रॉस Q। नेक्स्ट Q क्रॉस P इक्वल D A D B D C. Now you will see very clear if P cross Q is not equal to Q cross अगला लिखो नंबर ऑफ सबसेट्स पॉइंट्स है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। अब थोड़ा सा स्टेप बढ़ा है। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। अच्छा बताओ सेट A अगर हो तो सेट A में n एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? How many subsets of set A having element n? 2 plus n कितने एलिमेंट सेट A में तो 2 की पावर 2 to the power n बोलो ना, 2n बोलोगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो आना सपोज दैट सेट A having n एलिमेंट, तो सबसेट इसका बना नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, सेट्स इक्वल टू द पावर n। अब अगर सेट A में, यहां से समझना आप लोग, सेट A में m एलिमेंट है, ठीक है, सेट B में n एलिमेंट है। अब बताओ A क्रॉस B में टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? How many एलिमेंट? सेट A में m एलिमेंट, सेट B में n एलिमेंट, then how many एलिमेंट in A क्रॉस B? m into n, ठीक है ना? दिक्कत तो नहीं? तो m into n एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट। और अगर ये सेट है तो सबसेट कितना बनेगा? 2 की पावर mn। तो सबसेट्स आप यहां पे लिखोगे सबसेट्स इक्वल टू द पावर mn, ठीक है, याद रखना। सबसेट्स ऑफ, चलो नोट कर लो, सबसेट्स बन जाएंगे 2 to the power mn। अब
इस क्वेश्चन में आपको हम हिंट नहीं देंगे और आपको फाइंड करके हमें आंसर बताना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पे दिक्कत नहीं, क्योंकि जो सेट के पैटर्न पे था वही कार्टेशियन प्रोडक्ट का उसी पे पैटर्न पे है। तो इतने सबसेट बनेंगे और अभी इसका हम कहाँ पे यूज करेंगे वो आपको बताएंगे। इससे पहले एक आपके लिए क्वेश्चन है, लिखो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, ये भी सीबीएसई का पॉपुलर क्वेश्चन है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A has 9 elements. The Cartesian product of A cross A has 9 elements, among which are found -1 0, ऐसे -1 0 and -1 0 and 0 1 0 1. Find the set A, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। Find the set A and remaining elements of A cross A and remaining elements of A cross A. क्वेश्चन समझ में आया? किसको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? रेज हो रहा है 1 2, बाकी समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन? अरे पूर्वा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, देव को क्वेश्चन समझ में, 2 ही 3 बच्चे हैं। अरे फिर से समझो जाओ क्यों क्वेश्चन दिया आपको। आपसे कहा कि A क्रॉस A has 9 एलिमेंट्स, ठीक है। समझना, कोई एक सेट ऐसा है जिसमें कुछ एलिमेंट है, आप पता नहीं कितने एलिमेंट है, ये नहीं है। बात समझ में आ रहा है? जैसे अभी हमने लिखा था A में कितने एलिमेंट है 1 2 3 और B में कितने एलिमेंट है 3 4 5 6। तो आप बता दे रहे हो ना कि A में 3 है, B में 3 है, बता रहे हो ना। अब बताओ, एक अगर हम आपसे पूछें, अगर ये एग्जांपल इसमें कि A having 1 2 3 and B having 4 5 6, then how many elements are there in A cross B? तो कैसे बताओगे? 9, क्योंकि M into N 3 cross 3 9 एलिमेंट। ये तो समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक ऐसा सेट है A, अच्छा उससे पहले एक और चीज, अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी 2 एलिमेंट बताओ। अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कोई भी 2 एलिमेंट बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट का। 1 4 और कोई भी 2 बता, 2 5 हो गया। तो केवल 2 तो मिलेंगे नहीं, टोटल कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट आएंगे? 9 आएंगे ना। बात समझ में आ रहा है? तो अगर एग्जांपल से समझ रहे हो यहाँ पे, तो क्वेश्चन आपसे क्या कहा है कि एक ऐसा सेट A है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं लेकिन पता नहीं कितने एलिमेंट हैं। फिर कह रहा कि उसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया। देखो सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सेल्फ है मतलब श्योर है कि जितना इसका एलिमेंट होगा उतना ही एलिमेंट इसका भी होगा, इसका भी होगा, क्योंकि सेल्फ प्रोडक्ट है। सेल्फ प्रोडक्ट खुद का खुद से प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट किया गया है टोटल एलिमेंट जो आया है वो मिल करके कितना आ गया 9। एंड A क्रॉस B आपको 9 बोल रहा है। अब तो अंदाजा लगा सके और लगा लिए होंगे कि A में कितने एलिमेंट होंगे? 3 हो गए ना भाई, 3 तो होंगे। क्योंकि देखो अगर सपोज दैट यहाँ लेट कर लो कि लेट एन ए इक्वल हाउ मच, ए के x एलिमेंट है तो एन ए इंटू
8 आएगा इक्वल n इंटू x मतलब x², और दिस इज द टोटल नंबर ऑफ n a क्रॉस b, क्योंकि यही होता है एलिमेंट। तो अगर उस हिसाब से लिखोगे यहाँ पे तो n a क्रॉस b मतलब n a क्रॉस b इक्वल x² a क्रॉस a, और x² कितना है 9, x इक्वल 3, क्योंकि माइनस में तो काउंटिंग होगी नहीं, तो प्लस में ही जाए, इसी बात है -3 इज नॉट एक्सेप्टेबल। भाई काउंटिंग माइनस का तो होगा नहीं, काउंटिंग नंबर तो प्लस का होता है, ठीक है ना। तो +3 आप लोगे, -3 इज नॉट एक्सेप्टेबल। पर यहाँ पे प्लस माइनस लिखोगे, क्यों लिखोगे, रीजन बताओ। यहाँ प्लस माइनस क्यों लिखेंगे, अब आप 11th की चीजें पढ़ रहे हो तो चीजों की जानकारी स्क्वायर रूट तो ये भी होता है x इक्वल √9, और यहाँ पे आप सिर्फ 3 लिखोगे। पर अगर यही x² इक्वल 9 लिख दें तब x इक्वल +-3 लिखोगे, दोनों में अंतर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर √9 लिया 3 लिख रहे हैं, यहाँ पे x² 9 लिख रहे हैं तो +-3 लिख रहे हैं, तो अंतर तो है। अब क्यों अंतर है, क्यों हमने लिखा है, क्योंकि अंडर रूट जो है माइनस पे डिफाइंड नहीं होता है, इसको भी याद रखना। अंडर रूट जो है माइनस पे डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे और वैसे काउंटिंग नंबर नहीं है, क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल रहे हैं। तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज हाउ मच, 3 है। ए में भी 3 एलिमेंट होंगे। अब आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जो मिला है -1 और 0 है, तो आप सोच समझ के बताओ कौन कौन से एलिमेंट ए के हो सकते हैं। -1 0 ए के ऑफसेट ए क्या बनेगा, -1 0 और 1, क्योंकि भाई एक माइनस है, एक 1 है और एक 0 है। तो अब आपको जो रिमेनिंग एलिमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो फाइंड करने हैं। अब तो क्लियर है ना, इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो। और अब आप फाइंड करो, यहाँ पे क्या है, यहाँ फाइंड करो a क्रॉस a मतलब आप फाइंड करोगे -1 0 1 क्रॉस -1 0 1, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें 9 में 2 आर गिवन, तो रिमेनिंग 7 विच इज आस्किंग इन योर क्वेश्चन, ठीक है। टोटल आपको 9 मिलेंगे, 9 में से 2 दे रखे, 7 आपको बता दें कि वो कौन कौन से ऑर्डर के आएंगे जो a क्रॉस a के एलिमेंट होंगे। कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि आपको रिलेशन जितना सिंपल हो सके बता दे, ताकि दोबारा रिवीजन का मतलब सिचुएशन क्रिएट ना हो, क्योंकि सेट थ्योरी वैसे ही बच्चों के लिए टफ होती है, ठीक है। चीज़ें हैं आसान, लेकिन अगर ना समझ में आए तो फिर पल्ले से पार हो जाता है, क्योंकि टोटल थ्योरेटिकल है, कंसेप्चुअल है, न्यूमेरिकली ऐसा कुछ तो है नहीं। तो जब तक थ्योरेटिकली कंसेप्ट नहीं आएगा तो क्लियर ही नहीं होगा। नोट कर लिया। और अब ये फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिए। टोटल कितने एलिमेंट मिले आपको, 9। तो दीज आर द, अब लिखो रिलेशन। अगला पॉइंट है रिलेशन। ठीक है, लिखो लेट A and B, let A and B be, let A and B are two non-empty set, are two non-empty set। अच्छा ये बताओ, नॉन एम्प्टी सेट की बात करें तो नॉन एम्प्टी का मतलब आप जीरो उसमें
इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे भाई, जीरो एक एलिमेंट है ना, जीरो तो एक एलिमेंट है ना। हाँ, इसको ध्यान देना, जीरो एक एलिमेंट है। अगर वो किसी सेट में कंसीडर कर लेंगे जीरो एक एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। लेट ए बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, then any subset of A cross B, then any subset of A cross B is called, any subset of A cross B is called a relation from A to B, a relation from A to B, ठीक है। It is defined as R equal A cross B, R equal A cross B one minute रुक जाओ। डिफाइंड एज क्या है ना, डिफाइंड एज में R इक्वल ए बी सच दैट ए बी और एवरी A belongs to A, B belongs to, ठीक है। देखो, and is given by R such that A to B, denoted by capital A. देखो, if R equal 5, if R equal 5, then it is called empty relation. Then it is called empty relation. ठीक है, फिर से लिखो, if R equal A cross B, R equal A cross B, then it is called universal relation. If R equal A cross B, then it is called universal relation. ठीक है, फिर से लिखिए, let A B belongs to R, A B belongs to R, then it is written as A related B, and if AB is not belongs to R, then A is not related to B, ठीक है।
देखो डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। डोमेन एंड लेट इसमें लिखो let R is a relation, capital R is a relation from A to B, R such that A to B ठीक है। then the element of set A, then the element of set A is called domain, then the element of set A is called domain, and element of set B is called and the element of set B is called range or codomain, range or codomain, ठीक है। देखो एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R इक्वल 1 2 3 4 7 9 11 30, ठीक है भाई। और अब देखो ये क्या है, R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B, मतलब R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। हमने बहुत कुछ बोल दिया, तुम ध्यान नहीं दिए। हमने कहा है R इज अ सबसेट, नाम ध्यान से सुनना, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। हम सबसेट कैसे बनाते हैं वो आपको पता है, एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाते हैं, ठीक है। सबसेट कितने हैं, 2 to the power mn b बनेंगे। तो कोई भी सबसेट जो A क्रॉस B का बनेगा उसी को रिलेशन जो सबसेट बनेगा, ठीक है। अब उस रिलेशन में डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और इमेज क्या होता है, सारी चीजें आपके सामने, ठीक है। देखो एक साथ सब दिखा रहे हैं। दिस वन इज रिटन एज R इक्वल, ये रोस्टर फॉर्म इसको बोलते हैं। जैसे सेट रिप्रेजेंटेशन में रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म दो था ना, यहाँ भी वही चीज है। और एक जो है बाय डायग्राम, बाय जी डायग्राम, यहाँ भी वैसे रिप्रेजेंटेशन है, ये रोस्टर फॉर्म में। और इसी को अगर R सच दैट A to B और every A belongs to A, B belongs to B, तो वो आपका बिल्डर फॉर्म बनेगा, ठीक है। और डायग्राम भी दिखा दे रहा है कैसे करेंगे रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे डोमेन जो आपको मिलेगा, डोमेन जो R का मिलेगा वो R का फर्स्ट एलिमेंट जो है डोमेन होता है। फर्स्ट एलिमेंट देखो, फर्स्ट एलिमेंट 1 3 7 और 11, ठीक है। तो दीज आर द 1 3 7 11, ठीक। और कोडोमेन की बात करेंगे। कोडोमेन
ऑफ आर कितना आ जाएगा? सेकेंड एलिमेंट 2 4 9 30। अच्छा एक भी चीज और सुन लो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेंज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इमेज। ठीक है, फर्क क्या पड़ता है, क्यों चीजें ऐसे अलग अलग की गई? कोडोमेन, क्योंकि ये फंक्शन में एक्सप्लेन होंगे, यहाँ तो आप इतना ही जानो। कोडोमेन और रेंज इमेज कब डिफाइन करते हैं? जैसे देखो, अगर हमने लिखा, अब इसी का डायग्राम मेथड दिखा रहे हैं, ये सेट ए है और ये सेट बी है, दोनों का एक रिलेशन आर का रिलेशन है। ठीक है, ठीक, ये 1 है, 3 है, 7 है और 11। इसमें 2 4 9 30। कह रहा है कि 1 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 4, 7 इज रिलेटेड टू 9, 11 इज रिलेटेड टू 13। तो देयर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी। ये भाई बहन है, ठीक है, ये इनका रिलेशन भाई बहन का है, ये भाई बहन के रिलेशन है। ठीक है, तो दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। समझ में आ गया? ए और बी का ये एक रिलेशन है जिसका एक दूसरे से रिलेशन है। सेम वही चीज पढ़ रहे हो जो आप डेली लाइफ में पढ़ते हो, रिलेशन। ठीक है, वही चीज है। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये बाय यूजिंग डायग्राम है जिसमें ये सेट जो ए के है वो डोमेन है, इधर वो डोमेन है। अब अगर फंक्शन में वो डोमेन पढ़ोगे तो जैसे मान लो इसमें इनके इमेज तो इसमें है, लेकिन एक ऐसा इमेज और होता है, जैसे मान लो 14 या 50 लिख दिए, चलो मान लेते हैं, ऐसे लिख दिए, थोड़ा सा निकले इसको हटा, अब 15 हो गए। तो इसके इनके जितने भी एलिमेंट हैं वो इमेज तो इसके बंद है, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट मिला जो 15 जिसका कोई भी इसमें प्री इमेज है ही नहीं। प्री इमेज का मतलब वो एलिमेंट जिसका इमेज हो। तो प्री इमेज मतलब इसका इसमें क्या है, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज है। तो अगर हम पूछे आपसे कि व्हाट इज द इमेज, व्हाट इज द रेंज, तो आप क्या बताओगे? 2 4 9 13। सिर्फ कितना होगा? 2 4 9 13 रेंज या इमेज। डोमेन क्या बताओगे? 1 3 7 11। अब कोडोमेन क्या हो जाएगा? 2 4 9 13 15। कोडोमेन में सभी एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए हमने कहा है क्योंकि अभी आपको बताएंगे कि फंक्शन रिलेशन हो सकता है और रिलेशन जो है फंक्शन नहीं हो सकता है। और समझ में आ गया? इसीलिए वहां चीजें क्लियर कर दिया कि फंक्शन रिलेशन हो सकता है लेकिन रिलेशन जो है फंक्शन नहीं हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, ए रिलेटेड टू बी की बात जहां हमने यहाँ पे लिखा था ए रिलेटेड टू बी, ऐसे लिखा था, और एक जगह लिखा था ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। तो अगर आपसे कहें कि आप 1 रिलेटेड टू 2, बोलो यस है ना, 1 2 का पेयर है। बोलो 3 रिलेटेड टू 4, यस। 7 रिलेटेड टू 9, यस। 11 रिलेटेड टू 13, यस। पर अगर आपसे पूछने कि 5 रिलेटेड टू 7, नो, दिस इज नॉट। मतलब 5 का 7 से कोई रिलेशन नहीं है। अब तो लिखने का मतलब समझ में आ गया ना? ये बाय यूजिंग डायग्राम है जिसको आप यहाँ से बना भी लेना और आप ऐसे जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिख भी लेना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है? ऐसे जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही जैसे बनाए। अपूर्वा समझ में आ रहा है? आराध्या
जहाँ भी थोड़ा सा भी डिफिकल्ट होगा ना आपको बोल देना, ठीक है। हाँ, ये मत सोचना कि जाके बाद में समझ लेंगे, घर पे समझ लेंगे, पूछ लेंगे, क्योंकि चीज़ें हैं थोड़ी वैसी बिल्कुल नई चीज़ें हैं। अभी तक आप सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड में चल रहे थे, अब वो चीज़ें खत्म हो गई। अब कंसेप्चुअल भी कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट पढ़ने हैं, समझने करने, ठीक है। ऐसे ही रहेंगे, अब ये चीज़ें ऐसे ही चलेंगी पूरे चैप्टर। डोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन, रेंज इमेज। रेंज इमेज याद रखिए, रेंज इमेज एक ही है। कोडोमेन में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। कोडोमेन वो होता है जो जिसका प्री इमेज भी नहीं होता है, वो भी इवेंट उसमें से इंक्लूड कर रहे हैं। और रिलेशन में ऐसी बात है, रिलेशन में ऐसी बात है जैसे हम कह दें कि आप अपने घर में आपके जितने भी मेंबर्स हैं वो आपके रिलेशन में है। कोई भाई है, कोई बहन है, कोई फादर है, कोई मम्मी है, सबका एक रिलेशन है। अब एक कोई थर्ड पर्सन चला गया आपके घर में, तो आप क्या मानते हैं? इज नॉट अ रिलेटिव, ठीक है, इज नॉट अ रिलेटिव। तो अगर नहीं रिलेटिव हुआ पर है तो आपके घर में उस दिन स्टे तो किया हुआ है, तो आप उसको कलेक्शन तो मानोगे ना कि आपके घर में स्टे किया हुआ है, तो कोडोमेन में आ जाएगा। लेकिन अगर रेंज या इमेज की बात करेंगे तो रिलेशन से हट जाए। क्लियर है? वही चीज है यहाँ पे। चलो अब थोड़ा सा अगर रिलेशन आपने देख लिया है तो इसमें सिलेबस से स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चीजें आपके काम में लिखना है, केवल डिस्कशन की बातें होगी। हाँ, केवल डिस्कशन की बातें होंगी। अगर रिलेशन आपने देखा तो देयर आर 3 रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, ये आपके चैप्टर में नहीं है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, इसीलिए शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे और 2-4 मिनट डिस्कशन करेंगे, फिर आगे ट्रांजिटिव, ठीक है, ताकि आपको लगे ना कि रिलेशन पढ़ने का यूज कहाँ है, डेली लाइफ में हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। अब रिलेशन इज ऑफ 3 टाइप, मतलब ये जो आर था, आर ए बी फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू, ये जो आपने पढ़ा था, और आर इज डिफाइंड एज, ठीक है। अब सुन लो, रिफ्लेक्सिव क्या है? खुद का खुद से रिलेशन, खुद का खुद से रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। जैसे अगर हम एक सेट ले रहे हैं, सेट ऑफ सेट क्या है? X is a parallel lines, समझना? अभी मैथ समझा रहे हैं, फिर आपके डेली बेसिस पे X is a parallel, मतलब X क्या है? एक पैरेलल लाइन। X क्या है? एक पैरेलल लाइन। अब बताओ, कोई भी लाइन खुद की पैरेलल होती है? ये सब नो, कोई भी लाइन खुद की पैरेलल होती है? यस यार, पैरेलल लाइन का मतलब ही हुआ कि उनके बीच का कोई एंगल ही ना हो। तो अगर कोई लाइन ऐसे खींच दिया, ऐसे कोई लाइन ऐसे खींच दिया तो पैरेलल ही हुआ। अगर कोई लाइन खींच दिया तो पैरेलल ही हुआ ना, क्योंकि इसके ऊपर इसके बीच कोई लाइन ही नहीं हो। तो आप क्या बोलोगे? अगर x बिलोंग्स टू r, r क्या है? पैरेलल लाइन है। यानी चलो x, या इसको लिख दोगे x बिलोंग्स टू, x इज रिलेटेड टू, अब अगर बात करें कि
हालांकि हम थोड़ा सा स्किप करके दिखा रहे हैं आपको। अगर देयर आर टू लाइन्स, देयर आर टू लाइन्स, और पहला लाइन की बात कर रहे हैं, तो x रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू y का मतलब x जो है y के पैरेलल। यहाँ ये एक यूनिवर्सल सेट, एक तरह से सेट हमने डिफाइन किया है ना वेरिएबल को लेकर, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। अब उसमें कितने पैरेलल लाइंस हैं इसकी हम बात नहीं करें, क्योंकि हमने डिफाइन किया प्रॉपर्टीज में बहुत से सारी लाइंस हैं जो पैरेलल है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी लाइन खुद की पैरेलल है, x रिलेटेड टू r कह सकते हो, x रिलेटेड टू x। लेकिन अगर बात किया दो, उनमें से कोई दो पैरेलल लाइन ले लिया और हमने कहा x जो है y के पैरेलल है, तो क्या y x के पैरेलल होगा? बोलो भाई। देखो ये एक लाइन x है और एक लाइन ये y है, तो x रिलेटेड टू y, तो दिस इंप्लाइज y रिलेटेड टू x। बोलो सही बात है? यस, है ना। तो जब a b का भाई है तो b a का भाई ही होगा, श्योर है, ठीक है ना। तो इस टाइप का अगर रिलेशन हो तो दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे बोले कि a एक ऐसा सेट है जो सम ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। a में कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं। अब ऐसे a में कुछ एलिमेंट हैं और r एक ऐसा रिलेशन है जिनमें इंटीजर, जिनके जो x के जो a के मेंबर हैं उनका सम करें तो इंटीजर है, ठीक है। देखो हमने कहा है कि a एक ऐसा सेट है इसमें 1 2 3 5 so on सब कुछ लिखा, मतलब नंबर है। और r जो है ऐसा रिलेशन है कि a और b का सम करें तो इंटीजर मिले। बात समझ में आ गया? r क्या है? इंटीजर का रिलेशन। r क्या है? इंटीजर का रिलेशन। अब बताओ x रिलेटेड a या x रिलेटेड a मतलब इसी का कोई भी एलिमेंट, इसका ही कोई भी एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं। तो अगर हम कहें कि क्या a रिलेटेड a पॉसिबल है? बोलो यस। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा है कि सम ऑफ द एलिमेंट इज इंटीजर। तो अगर कोई भी इसमें से जैसे 1 2 3 4 कोई भी, अगर खुद कोई भी एलिमेंट होगा, जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो 3 में रिलेशन ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा और 6 क्या है? इंटीजर है, ठीक है। तो खुद का खुद से जो है रिलेशन मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सम क्या है? इंटीजर ही आएगा। इनमें से वो किसी को सम करोगे तो इंटीजर आएगा, खुद का खुद से भी सम करोगे तो भी इंटीजर आएगा। तो a रिलेटेड a रिफ्लेक्सिव बना और ये भी रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक भी था। ट्रांजिटिव तो भूल गया इसका बताना। चलो एक और लाइन से x रिलेटेड y, ये तो सही था, ये तो सही था। y रिलेटेड z, बोलो तीसरी लाइन y के पैरेलल है। ऐसे देखो, एक लाइन ये है x, एक लाइन y और एक लाइन z, 3 लाइन, ठीक है ना। तो x y के पैरेलल है, y z के पैरेलल है। अब बोलो क्या x z के पैरेलल होगा? यस। तो आप बोलोगे विच इंप्लाई x रिलेटेड टू। तो जब a b का y है, b c का y है, तो a c का y होगा। और ऐसा रिलेशन जो है क्या आएगा? ट्रांजिटिव का बनेगा। क्या बनेगा? ट्रांजिटिव का बनेगा।
हम इंटीजर बता रहे हैं, तो इंटीजर में कुछ सेट एलिमेंट्स दिए हैं, उनमें से सम खुद का सम इंटीजर रिफ्लेक्सिव है ना। अब बताओ, अगर x y ले, x रिलेटेड टू y, दूसरा वाला एग्जांपल में बताना, इज इट ट्रू? सिमेट्री बनेगा। x रिलेटेड y पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट का सम लोगे तो इंटीजर ही तो आएगा भाई। इंटीजर या तो प्लस आएगा तो माइनस आएगा। तो x रिलेटेड y पॉसिबल है, तो क्या y रिलेटेड पॉसिबल होगा? y रिलेटेड x? भाई कोई भी दो इंटीजर लोगे अगर एक ही सेट में से, तो उनका भी सम तो इंटीजर ही आएगा। तो ये सिमेट्रिक बना। अब बताओ, A में एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इनमें से कोई भी दो को सम किया इंटीजर मिला, और दूसरा और तीसरा किसी एलिमेंट को सम किया तो भी इंटीजर मिलेगा। अब फर्स्ट और थर्ड मतलब x और z को सम करेंगे तो भी इंटीजर मिलेगा, क्योंकि है तो इसी के एलिमेंट, इनमें से किसी को किसी से ऐड करोगे तो इंटीजर ही मिलेगा। यानी x रिलेटेड टू x राइट, x रिलेटेड टू y which imply y related to x right, x related to y, y related to z, this implies x related to z right. Reflexive, symmetric, transitive. Then the next part, अगर आपसे पूछे कि R is a relation AB, ऐसे देखो, समझना चीजों को बहुत अच्छा टॉपिक उठाया, इसलिए तुम्हें डिटेल में समझा रहा है। AB such that A is perpendicular to B, ठीक है, for every AB belongs to A is a set of x such that x is a perpendicular lines, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझना रिलेशन ऐसा है A और B में। देखो यहाँ से रिलेशन A और B में ऐसा है कि A B के परपेंडिकुलर है। बोलो A रिलेटेड A पॉसिबल, A रिलेटेड A। अब तुम लोग बिल्कुल अब डर मत हो जाओ, बोलो A रिलेटेड A पॉसिबल है? यस। कोई भी खुद की लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी, खुद की लाइन तो पैरेलल होगी ना, तो A रिलेटेड A पैरेलल खुद पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, देखो रिलेशन दिया है A और B आपस में परपेंडिकुलर है, तो A रिलेटेड A पॉसिबल है? नो, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बताओ A is perpendicular to B, A related B पॉसिबल है? Yes, क्योंकि these are the perpendicular lines। तो अगर हम बात करें कि ये लाइन A है, ये लाइन B है, तो आप बोल सकते हो कि A is perpendicular to B। बोलो सही है ना? अब बताओ B is perpendicular to A, बोलो सही है? भाई अगर A B के परपेंडिकुलर है तो B A के भी परपेंडिकुलर होगा, ऐसी बात है, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल तो है ही। तो ये आपको सिमेट्रिक बना, ठीक है, मतलब R जो है यहाँ पे जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की चेक करते हैं। अगर A जो है B के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और मान लो कि B जो है वो परपेंडिकुलर टू C के, तो क्या A परपेंडिकुलर एंड B परपेंडिकुलर टू C, तो क्या A परपेंडिकुलर टू C पॉसिबल है? पॉसिबल है, पॉसिबल है।
चलो देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। सी देखो, लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है। अच्छा बी जो है ऐसे लिखते हैं, बी जो है सी के परपेंडिकुलर, ये सी बना देना। बोलो, ये लाइन बी है, ये लाइन सी है और ये लाइन ए है, ठीक है ना। ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है। अब बताओ क्या ए सी के परपेंडिकुलर है? नहीं, नहीं है ना। कैसे होंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो इन दैट केस कोई जब हमेशा पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल होगा भी नहीं। अगर यहाँ भी लोगे तो सेम लाइन में आ जाएंगे तो पैरेलल हो जाएंगे। तो ए बी के तो परपेंडिकुलर है, बी सी के भी परपेंडिकुलर है, बट ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू सी। तो आप बोलोगे कि अगर ए सी के पर ए जो है, ठीक है, अगर ए सी के परपेंडिकुलर नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो केवल एक रिलेशन बच गया, सिमेट्री। अब तो शायद रिलेशन थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब 1 मिनट डिस्कशन आ गया थोड़ा सा।